Assalamualaikum class, how are you? Good morning. Are you there final year? Assalamualaikum. Can you hear me? Okay, thank you, Laiba. Good morning, dear. Oh, thank you so much, brother, for a complete sentence. Yes, ma'am, we can hear you. वालेकुम सलाम गुलाम फातिमा. आज आपको आवाज़ आ रही है गुलाम फातिमा मेरी क्लियर? ठीक है आप लोग? जी. PPT is uploading. G class. Yesterday, we were talking about the memo writing, how to write a memo. Take a overview. मेमो का यही तरीका है. कल भी स्टूडेंट्स में से पूछ रहे थे समराइज करने का नाम है मेमो. मेमो किस चीज़ का नाम है जी? तो मेमो है टू फ्रॉम डेट एंड सब्जेक्ट. ये जो है मेन आप लोगों का मेमो राइटिंग का जो है वो आप लोगों ने इस तरह से करनी है. ओके. जी.
ओके जी, मेमो राइटिंग का जो वे है वो यही था, आप लोगों का मेथड यही था। टू, फ्रॉम, डेट एंड सब्जेक्ट जो है वो आ जाएगा आप लोगों का, ठीक है। उसके बाद जो है इंट्रोडक्शन दिया था, व्हाट इज़ मेमो, ए मेमो इज़ अ डॉक्यूमेंट। अब गौर से सुनना है, गुलाम फातिमा, वेयर आर यू, Fatma and Ghulam Fatma. What is a memo? Memo is a document that is generally short, focuses on a single topic, reports information, makes a request or recommendation, action, it follows specific forms depending on the organization. Specific forms होते हैं, depend करता है organization के ऊपर. Audience and purpose. Memo have twofold purposes. They bring attention to problems and they solve problems. They accomplish their goals by informing the reader about new information like policy changing, price increases, or by when they connect to the purpose of the writer with the interest and needs of the reader. Okay, audience and purpose. Choose the audience of the memo wisely. Ensure that all of the topic that the memo is addressed to need to read the memo. If it is an issue involving only one person, don't send the memo to the entire office. Also, be certain that material is not too sensitive to put in a memo. Sometimes the best forms of communication are face-to-face interaction or a phone call. ऑडियंस एंड पर्पस भी पता चल गया था। पार्ट्स ऑफ मेमो क्या थे, ये थे हमारे पास पार्ट्स ऑफ मेमो। ज़रा जिन बच्चों ने सही से नहीं लिए हैं वो जो है वो लेना शुरू करें अब, ठीक है, समझना शुरू करें, देखना शुरू करें कि हमारे पास पार्ट्स ऑफ मेमो हैं क्या, ठीक है। पार्ट्स ऑफ मेमो क्या है, सेगमेंट ऑफ मेमो क्या है, ठीक है। आप लोगों को ये स्लाइड बार 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 दिखाने का एक ही पर्पस है कि यू हैव टू फिक्स इन योर माइंड एंड डोंट फॉरगेट इट in your whole year or in your final year, especially when you didn't become in your appear in the examination of final year. Keep it in your mind, the concept and the heading segment and the format of the memo. You should keep it in your mind till the final examination of the final year. Okay. टू रीडर्स नेम एंड जॉब टाइटल्स फ्रॉम डेट एंड सब्जेक्ट। टू में जो है रीडर्स नेम आ जाएगा और जॉब टाइटल आ जाएगा, उसका है क्या। फ्रॉम में योर नेम आ जाएगा, जॉब टाइटल आ जाएगा, डेट आ जाएगी, कंप्लीट एंड करेक्ट डेट आ जाएगी, जो भी होगी। सब्जेक्ट ऑफ अ मेमो यू हैव टू चूज इट वेरी वाइजली, ठीक है, बहुत ज़्यादा वाइजली जो है इसको आप लोगों को करना पड़ेगा। जी, इसको जो है टेक अ पेपर एंड पेन and do write the format of the memo. To, from, date, and subject. Make sure you address the readers by his or her correct name and job title. You might call the company president Maxine an informal note, but Rita Maxwell, president, would be more appropriate for a formal memo. Okay, be specific and concise in your subject line. For example, clothes as a subject line could mean anything from a dress code update to a production issue. ठीक है, मेमो का जो फॉर्मेट है वो आप लोगों ने अच्छी तरह से याद रखना है। टू जिसको लिखा जा रहा है, फ्रॉम क्या है, डेट क्या है, सब्जेक्ट क्या है। टू में ये आ जाएगा रीडर कौन है, ठीक है, रीडर्स नेम एंड जॉब टाइटल एंड यूज हियर द रियल नेम नॉट द निक नेम। ओके, रियल नेम, जॉब टाइटल आ जाएगा, फ्रॉम जो है योर नेम आ जाएगा, जॉब टाइटल आ जाएगा, डेट आ जाएगी आप लोगों की कंप्लीट एंड करेक्ट डेट आ जाएगी, और सब्जेक्ट आ जाएगा आप लोगों का सब्जेक्ट है क्या। Make sure you address the leaders by his or her correct name and job title. You might call the company president Maxine and informal note, but Rita Maxwell president would be more appropriate for a formal memo. Is it clear to all of you? इसमें कोई मुश्किल है या सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछें मुझसे।
जी गुलाम फातिमा, वेयर आर यू डियर? Just read it and if you want to ask any question regarding this, so tell me. Don't forget, this is a basic format of the memo writing. Heading segment basically. How to write a memo. This is a format of writing a memo. G. जी शाबाश गुलाम फातिमा, आई एम हियर, वेरी गुड बेटा। इसको पढ़ें, जो नहीं समझ आता लास्ट वाली स्लाइड यहाँ पे आपको क्लियर है, समझ आ रही है, ठीक है। कल आप मुझसे काफ़ी क्वेश्चन करते, अच्छी बात है। इफ़ यू वांट टू लर्न इन योर लाइफ, यू हैव टू आस्क क्वेश्चन विद योर टीचर्स, विद अदर पर्सन्स, इफ़ यू वांट टू लर्न। ओके, अगर आप क्वेश्चन नहीं करेंगे तो आपका लर्निंग फेज जो है वहीं पर स्टॉप हो जाएगा। ओके, तो इसलिए अगर लर्निंग फेज को आप लोगों ने अपने जो है वो कंटिन्यू करना है, तो आप लोगों को फिर पूछना होगा, सवाल पूछने होंगे, क्वेश्चन पूछेंगे तो आप लोग जो है वो आगे चल सकेंगे, ठीक है। गुलाम फातिमा, जस्ट आई स्टे इन दिस स्लाइड बिकॉज ऑफ यू, only you just read it and understand it, what is it basically, okay? थैंक यू वर्दा। ठीक है, गुलाम फातिमा के लिए मैं स्टॉप हुई थी कि वो पूछी थी समरी राइटिंग कहाँ लिखेंगे, इसलिए मैंने सोचा कि बहुत से बच्चे हैं जो स्टूडेंट्स हैं जिनको नहीं पता, तो वो मैं उस उनको अच्छे बजाय इसके कि आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं वो रहे माइंड में कि क्या है ये समरी कहाँ पे लिखनी है, हमने क्या करना है, मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू आपको फिर से लेक्चर दूं, वो कोई मसला नहीं है मुझे, ठीक है। इसलिए अगर आपको अभी भी नहीं समझ आया, बुशरा आपको नहीं समझ आया, फातिमा आपको नहीं समझ आया, तो आई एम फॉर योर गाइडेंस डियर, मुझे बताएं आप लोग। Don't need your thanks actually, I need your Fatima, I'm waiting for your answer. Now is it understandable for you? अच्छा जी, समझ आ गया, दैट्स वेरी गुड, क्या आ गया समझ, ठीक है। अब ये हेडिंग सेगमेंट है ना हमारे पास, ठीक है, इसमें क्या टू फ्रॉम डेट सब्जेक्ट आ गया है, ठीक है। लेकिन इफ यू हैव टू राइट मोर and in detail, then you will attach the next paper and write their summary, okay, but not with the heading of summary, ठीक है। summary नहीं लिखेंगे, summary लिखेंगे वहाँ पर, लेकिन summary 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 की heading नहीं देंगे वहाँ पर, ठीक है, बल्कि वहाँ पर टॉपिक के नेम को ही डिफाइन करना है हम लोगों ने। नाउ यू गेटिंग माय पॉइंट? अब स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी सर, कि आप लोगों ने करना किस तरह से है। ओके, नेक्स्ट इज ओपनिंग सेगमेंट, ठीक है। ओपनिंग सेगमेंट भी मैंने आप लोगों को करवा दिया था। कॉन्टेक्स्ट क्या आना है कि आप लोग उसमें लिख क्या रहे हैं कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। पैराग्राफ क्या है,
फ्यू सेंटेंसेस क्या हैं, बैकग्राउंड क्या है, इसका प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, वो सारा कुछ आ जाना है। उसको समरी सेगमेंट आ गया है, ये मैंने कल आप लोगों को बताया था कि समरी सेगमेंट है क्या। बेसिक इफ़ योर मेमो इज लॉन्गर देन 1 पेज यू मे वांट टू इंक्लूड अ सेपरेट समरी सेगमेंट, ठीक है। अब वो तो अपने मेमो फॉर्मेट में आपको बता दिया, टू, फ्रॉम, डेट एंड सब्जेक्ट, ठीक है। उसके नीचे आप लोगों ने कॉन्टेक्स्ट भी लिख दिया, ठीक है। इफ़ यू नीड टू मोर एक्सप्लेनेशन, इफ़ यू वांट टू more explain in your memo writing in your topic, then you have to write here summary segment, note with the name of summary segment, okay. You have to write here what the topic, okay. And however, this section is not necessary for short memos and should not take up space. This segment provides a brief statement of the key recommendations you have reached. These will help your readers understand the key points of the memo immediately. This segment may also include references to methods and sources you have used in research, ठीक है। रिसर्च में जो आप लोग लिखते हैं, ठीक है, जो आप लोगों को मेमो में लिखना पड़ता है, डिटेल्स देनी पड़ती हैं, ये सारे का सारा उसमें आता है। क्लियर। डिस्कशन सेगमेंट में क्या आता है? डिस्कशन सेगमेंट आर द लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ द मेमो and are the parts in which you include all the details that support your ideas. Being with the information that is most important, this may mean that you will start the key findings or recommendations here. अब डिस्कशन समरी सेगमेंट जो क्या होगा, वो डिस्कशन सेगमेंट भी होगा, ठीक है। डिस्कशन सेगमेंट में आप बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। ओके जी, ठीक है। उसमें डिस्कशन सेगमेंट में भी आ सकते, डिस्कस सेगमेंट देयर आर द लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ द मेमो एंड अदर पार्ट्स इन विच यू इंक्लूड ऑल द डिटेल्स दैट सपोर्ट योर आइडियाज। वैसे तो मेमो होता है 4-5 लाइन से इससे ज़्यादा लाइन का नहीं होता, ठीक है। लेकिन बहुत हमारे पास कोई टॉपिक इस तरह का आ गया, कुछ इस तरह की चीज़ें आ गया कि हमें ये सारा कुछ करना पड़ रहा है, ठीक है। जब ये सारा कुछ हमें करना पड़ेगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जो है उसको इन्फॉर्मेशन को मोस्ट इम्पोर्टेंट वे में ले जाएंगे। दिस में मीन दैट यू विल स्टार्ट विद की फाइंडिंग्स एंड recommendations, ठीक है। डिस्कशन सेगमेंट में स्टार्ट विद योर मोस्ट जनरल इन्फॉर्मेशन एंड मूव टू योर स्पेसिफिक एंड सपोर्टिंग फैक्ट्स। द डिस्कशन segment include the supporting ideas, facts and research that back up your argument. In the memo include the strong points and evidence to persuade the readers. To follow your recommendation section, recommendation section जो है वो आएंगे।
चलो, ये अच्छी बात है। बकरा। ओके जी, डिस्कशन सेगमेंट भी हो गया हम लोगों का। नेक्स्ट जो है क्लोजिंग सेगमेंट में आ जाते हैं। आफ्टर द रीडर्स आर ऑब्जर्व ऑल ऑफ योर इंफॉर्मेशन, यू वांट टू क्लोज विद अ courteous ending that states with what action you want your reader to take. Make sure you consider how the reader will benefit from the desired actions and how you can make those actions easier. For example, you might say, I will be glad to discuss these recommended recommendations with you during our Tuesday trip to Spy and through फॉलो थ्रू ऑन एनी डिसीजंस यू मेक। ठीक है, क्लोजिंग सेगमेंट आप लोगों ने बहुत अच्छा सा जो है उसको सम अप करना है। क्लोजिंग सेगमेंट आप लोगों ने बहुत अच्छा सा देना है उसको। ठीक है, इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी सी देनी है। कर्टियस सेंडिंग होनी चाहिए। व्हाट एक्शन यू वांट योर रीडर टू टेक, कि कौन सा एक्शन जो है वो होना चाहिए यहाँ पे। मेक श्योर यू कंसीडर हाउ टू रीडर विल बेनिफिट फ्रॉम द डिजायर्ड एक्शंस एंड हाउ यू कैन मेक दोज एक्शंस ईजियर। फॉर एग्जांपल यू माइट से, आई विल बी ग्लैड टू डिस्कस दिस रिकमेंडेशंस विद यू ड्यूरिंग आवर ट्यूसडे ट्रिप्स पाथ। ठीक है, अच्छा अब क्लोजिंग में क्या आएगा? Thanks for your anticipation, or hope you will consider my request, or hope you will be solve this problem. ठीक है, इस तरह से हम लोग क्लोजिंग, इफ यू आर गोइंग टू राइट मेमो, गोइंग टू राइट अबाउट द क्लोजिंग सेगमेंट, दैट्स व्हाई। ओके, मेमो फॉर्मेट हम लोगों ने बेसिकली स्टार्ट करना था। यहाँ तक सबको अब क्लियर है? एनीथिंग डू यू वांट टू आस्क क्लास अबाउट डिस्कशन सेगमेंट, समरी सेगमेंट, ओपनिंग सेगमेंट? अब तो मेरे ख्याल से आप लोगों की फिंगर टिप्स पे हो जाना चाहिए ये सारा कुछ। जी इरफान, इनका तो शुक्र है क्लियर हो गया। और जिस दिन पहले दिन आएंगे ना, इन सब बच्चों से मैंने ये लिखवाना है मेमो फॉर्मेट। फॉर्मेट ऑफ मेमो लिखवाऊंगी आप लोगों से, ताकि आप लोगों को कितनी समझ आ रही है कितनी समझ नहीं आ रही, अभी के अभी पता चल जाएगा मुझे। ठीक है, इंशाल्लाह मेरी क्लासेस नहीं होती है। जी, इंशा वहीद इतने अरसे से क्लासेस नहीं ले रही है। किसी को कुछ पता हो? आमिर भी कभी आ जाता है कभी नहीं आता है क्लास में। अच्छा नहीं, इंशा वहीद तो आज ले रही हैं क्लास पे मेरी। ठीक है, सामने ही आ गया, इंशा वहीद का नाम लिया, सामने इंशा वहीद का नाम आ गया। इरम नज़ीर भी, इंशा वहीद भी। ओके, ठीक हो गया, फाइन। नैना जोड़ भी सामने आ गई। ओके जी, सबको क्लियर है? गुड, शाबाश, वेरी गुड। चलें जी, अब हम आगे चलते हैं। फिर इसका मतलब इससे आगे चलते हैं हम। मेमो फॉर्मेट आ गया हमारे पास, मेमो फॉर्मेट पार्ट 1। ठीक है, अब वो क्या थे हमारे पास? अभी जो हम लोगों ने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है? समरी सेगमेंट था हमारे पास, कॉन्टेक्स्ट था, और ओपनिंग सेगमेंट था, ये था हेडिंग सेगमेंट। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ मेमो थे। ठीक है, पार्ट्स ऑफ मेमो में ये सारा कुछ आ गया था। ठीक है, उसके बाद जो है वो समरी सेगमेंट में हमारे पास आ गया। डिस्कशन सेगमेंट भी इसी में आ गया। पार्ट्स ऑफ मेमो, नाउ मेमो फॉर्मेट। मेमो का फॉर्मेट है क्या? फॉर्मेट ऑफ अ मेमो फ्लोज आर जनरल गाइडलाइंस ऑफ बिजनेस राइटिंग। कहते हैं बेसिकली प्रोफेशनल राइटिंग होती हैं, बिजनेस राइटिंग होती हैं। ठीक है, मेमो इज यूजली अ पेज और टू लॉन्ग। कहते हैं एक पेज पर ये कंसिस्ट करता है, यहाँ पे 2 पेज पर। शुड बी सिंगल स्पेस, सिंगल स्पेस इसमें देनी होती है। लेफ्ट जस्टिफाइड, राइट लेफ्ट से हम जो है इसको जस्टिफाइड करना होता है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग identifications to indentations,
मैंने कल इसका मतलब आप लोगों को बताया था, क्या मतलब बताया था याद है कुछ लोगों को, भूल गए हैं। टू शो न्यू पैराग्राफ स्किप अ लाइन बिटवीन सेंटेंस, बिजनेस मटेरियल्स शुड बी कंसाइज एंड इजी टू रीड, इंडेंटेशंस भी मैंने कल इसका मतलब बताया था आप लोगों को, हु विल टेल मी। इंडेंटेशन। जी। जी फाइनली आई एम आस्किंग टू यू इंडेंटेशंस। कल मुझे उसने बताया था, इमन ने इसका मीनिंग बताया था, मैंने आप लोगों को लिख के बताया था कि इसका क्या मतलब होता है, समझाया भी था। आज सर्च हो रही होगी, आप सर्च करें आप लोग। Set over something you mean to do. Okay. Or intention means free. Indentations. One inch gap we leave before starting the line. Eamon, wow, very good. Big hand for Eamon. We have to a space gap we before starting a line or before starting a paragraph. Indentations, okay, the actions of indications or state of being intended आ जाएगा यहाँ पे, इसमें आएगा space at the beginning of a writing a paragraph line। आप कोई बच्चा भूला ना तो फिर देखना आप लोग मैं क्या हाल करती हूँ आप लोगों का, मैं लिख देती हूँ आप लोगों को फिर से। द मीनिंग ऑफ इंटेंशंस इज a space at the beginning of written line or a paragraph। ठीक है जी, आप कोई भी बच्चा इसको भूले ना, ठीक है, इसको रीड कर लें, जो नहीं समझ आती पूछे मेरे से। आई एम गिविंग यू टाइम फॉर 5 minutes, रीड इट।
जी हाजरा, समझ लें इसको ज़रा। हीरा भी क्लास में नज़र नहीं आ रही है। हीरा है, हुरिया। हुरिया लगता नहीं है आज क्लास में। और शाहरुख खान भी कभी आ जाता है, अपेयर हो जाता है, फिर से भाग जाता है, पता नहीं क्या करते हैं ये लोग। और आमिर ने भी इसी तरह से किया, 2-4 दिन ऑनलाइन क्लासेस लिया, उसके बाद पता नहीं क्या हो गया। हमज़ा भाई इनका आप फीडबैक दें हमें कोई इनका, कि ये क्या बात हुई? थोड़े दिन आते हैं, उसके बाद फिर गायब हो जाते हैं, फिर आते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। जी, अब हुरिया आ गया। नो ऑडियो। हुरिया को आवाज़ क्यों नहीं आ रही मेरी भाई? जी वर्दा, कैन यू हियर मी? हेलो। भाई मेरी आवाज़ तो बिल्कुल ठीक है। कैन यू हियर मी नाउ? Okay, yes, everyone can hear me. Okay, thank you so much. Okay, I think the message was stuck there, but now I got your message. Okay, thank you so much. Okay, ma'am, format one is clear to all of you students. Now, may I move for next slide? Okay, अब आवाज़ आ रही है, ठीक हो गया। ओके, मेमो फॉर्मेट पार्ट टू। मेमो फॉर्मेट पार्ट टू की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, तो यू कैन हेल्प योर रीडर्स अंडरस्टैंड योर मेमो बेटर बाय यूजिंग हेडिंग्स फॉर द समरी एंड द डिस्कशन सेगमेंट दैट फॉलो इट। कहते हैं यू कैन हेल्प योर रीडर्स, आप रीडर्स का जो है हेल्प कर सकते हैं अंडरस्टैंड योर मेमो बेटर बाय यूजिंग हेडिंग्स फॉर द। Yes, Farda, you only the person you can understand me. I don't know what's wrong with them. They can't understand the main point. Actually, they have not concentration on the lecture. That's why they are doing the many more activities at that time. Yes, we all understand you. Thank you, Gulam Fatma. Okay, memo writing, memo format part two. You can help your readers understand your memo better by using headings for the summary and the discussion segment that follow it. क्या कहते हैं कि अब आपने टू फ्रॉम डेट सब्जेक्ट लिख दिया, उसके बाद कॉन्टेक्स्ट लिख दिया, कॉन्टेक्स्ट में ही वैसे वहाँ पे वो सम अप हो जाना चाहिए आपका, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको डिटेल लिखनी पड़ती है, तो आप समरी सेगमेंट में जाएंगे, उससे ज़्यादा लिखना पड़ता है तो आप डिस्कशन सेगमेंट में भी जा सकते हैं, अगर कोई बात डिस्कस करने वाली है, कोई टॉपिक डिस्कस करने वाला है। हाँ, राइट हेडिंग्स दैट आर शॉर्ट, कहते हैं हेडिंग्स भी आप उसमें दे सकते हैं मेमो राइटिंग में। वैसे तो सिंगल टॉपिक ही होता है हमेशा जब मेमो होता है, ठीक है। उसमें आप दे सकते हैं समरी में फॉर योर हेडिंग्स दे सकते हैं, ट्राई न्यू एडवर्टाइजमेंट रिकमेंडेशन दे सकते हैं, विच इज़ मच मोर स्पेसिफिक, ठीक है। चलें, अब जो है जल्दी से मेमो फॉर्मेट जो है पार्ट टू पढ़ें। इसमें जो समझ नहीं आती पूछे मुझसे। आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स, मैं आपको 5 मिनट्स देगी, इसको समझें। नहीं समझ आती तो मेरे से पूछें, और मैंने अभी सवाल पूछना है आप लोगों से, ठीक है, कि क्या होता है मेमो फॉर्मेट पार्ट वन में क्या था, मेमो फॉर्मेट पार्ट टू में क्या है, समरी सेगमेंट क्या होता है, डिस्कशन सेगमेंट क्या होता है इसमें, ठीक है। जिनको समझ आनी है उनको आ गई हुई है, और जिनको नहीं आनी मेरे ख्याल से उनको आनी नहीं है, वो पूछ भी नहीं रहे कि मैम ये क्या होता है, ये क्या नहीं होता, ठीक है जी, बताएं मुझे।
जी, बिल्कुल सैर कमल, मैंने ये करवाया था आप लोगों को, लेकिन उसमें क्या है कि स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है समरी राइटिंग कहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आज फिर से मैंने प्रीवियस स्लाइड्स जो हैं रिवाइज़ की हैं, क्योंकि they didn't attend the lecture properly, that's why. Yes, I can share, of course. I must share these slides on slums. शलामाई लर्निंग मैनेजमेंट पर जो है ये मैं आप लोगों को जो है वो शेयर कर दूंगी स्लाइड्स, उसमें से आप लोग पढ़ लें और उसमें से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। कुछ स्लाइड्स जो है मैंने उसमें की भी थी अपलोड, वो भी आप लोगों ने चेकआउट किया उसको या नहीं किया। टेक्स्ट राइटिंग जो है उसकी पीपीटी अपलोड कर दी गई है, इंटरव्यू स्किल्स की पीपीटी जो है वो अपलोड कर दी गई है, ठीक है। इसके बाद थर्ड टॉपिक आप लोगों का ये बनता है मेमो राइटिंग, इसकी भी अपलोड हो जाएगी जैसे ये खत्म होगा आप लोगों का टॉपिक, तो इसकी भी जो है वो मैं कर देती हूँ। जी, यहाँ तक मेमो राइटिंग सबको क्लियर है स्टूडेंट्स, यू वांट टू आस्क एनीथिंग एल्स, ठीक है। जी, टू फ्रॉम डेट सब्जेक्ट को किसी ने नहीं भूलना, ठीक है। टू जो है उसमें डेजिग्नेशन आ जाएगा, डेजिग्नेशन नेम आ जाएगा, प्लस जो है उसमें वो आ जाएगा। अच्छा जी, 135, ओके। अब आपकी अटेंडेंस डेली जो है जी, मार्क योर अटेंडेंस स्टूडेंट्स। इज इट क्लियर? डू यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? तो मुझे बता दें, मैं आप लोगों को पढ़ा देती हूँ, दोबारा से बता देती हूँ मैं। आई एम हियर फॉर योर गाइडेंस, लेकिन ये दोबारा दोबारा मुझे आप लोगों की कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस नहीं चाहिए। यू हैव टू आस्क द क्वेश्चंस फुल ऑफ कंफ्यूजन, मैम ये क्या होता है, तो ये क्या होता है। जी मिशेल, ये आपको आवाज़ क्यों नहीं आ रही? मिशेल, आप आवाज़ आ रही है आपको?
यास्मीन है आज क्लास में कि यास्मीन छुट्टी भी है? यास्मीन